right? Yeah. No need. First of all, thank you very much, all of you, for inviting me as a guest speaker. It's a wonderful opportunity for me and also surprising. Although I am not a professional consultant like all of you, I all try to deliver my best learning which I have learned based on my life experience. I am an entrepreneur running a business with manufacturing activities in two different verticals. Also, I have been providing consultancy to the industries in process engineering since last 10 years. As a business consultant, I would be happy to tell you that Wildgrow India Limited today is a remarkable international brand due to my latest ideas implemented in my own factories. From my experience with consultant, I have learned plenty of methodology, skills, and the how to think approach my beginning career, which have helped me grow my business. And from the biography I have read, every successful entrepreneur is backed by good consultant. So I want to cultivate entrepreneur to awaken them and develop a sense of national spirit among them and build a made in India brand across the globe. Why have I entered the consulting business? It's a good question from Mr. Bhagat. As I see the future, consulting business will become a booming industry in upcoming future. You may be surprised why I am addressing consulting is an industry. Consulting is the first industry to pioneer remote working. As consultants need to work from different parts of the world. Consulting, and more specifically management consulting, is the practice of helping organizations improve their performance via analysis of existing organizational problems and developing plans for further improvement. With expertise, consultants focus on content, process, and they come into a project with a certain authority to produce the solutions. Entrepreneurs invent new things in firefighting modes, where consultants develop successful entrepreneurs who generate the revenue with strategic planning for national growth. By teaching, educating, motivating them with unique ideas to make a roadmap. I am blessed doing business along with consulting is a good sign for me. According to Adroit Market Research, global management consulting service market is expected to grow about $343 billion in 2025, which is today nearby $100 in 2020. As per Indian management consulting services, market is expected to reach about 55,000 crore in 2025, which is today is 27,000 crore. So, consultant produce lot of entrepreneur, and therefore, see, we as an entrepreneur we produce some part, but as a consultant produce entrepreneur. So, entrepreneur प्रोडक्शन करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है. एंटरप्रेन्योर का आदमी बन जाता है, कभी किसी को कोई अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलती है तो वो कुछ भी करके एक एंटरप्रेन्योर बन जाता है, छोटी सी चाय की दुकान खोल के भी, और एक सर्टेन लेवल तक का वो सक्सेस ले लेता है. बट वो सक्सेस के बाद उसको एक हेल्प की, एक एडवाइस की ज़रूरत होती है, वो हम कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं. तो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली हम लोग ऐसे एजुकेटेड पीपल और अवेयर करते हैं एंटरप्रेन्योर को, ताकि आगे इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हो. According to estimate, there are now over 10,000
स्मॉल एंड बिग कंसल्टेंट इन इंडिया, एंड उसमें से 6000 कंसल्टेंट सिर्फ मेट्रो सिटीज में है, लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर में, और 4000 जैसे कंसल्टेंट छोटे शहरों में। वो मानना है कि 2025 तक वो कम से कम 15000 कंसल्टेंट टोटल हो जाएंगे, और ये 15000 अगर कंसल्टेंट बनते हैं तो 2025 तक कंसल्टेंट इंडस्ट्रीज जनरेट द मोर देन 3 लाख एम्प्लॉयमेंट, 3 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जो आज की तारीख में नियर बाय 1 लाख एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दिया हुआ है। तो आप लोग भी एक रोजगारी खड़ी कर रहे हो कंसल्टिंग बिजनेस के, और इसीलिए मैं इसको इंडस्ट्रीज के साथ कन्वर्ट कर रहा हूँ। एज पर माई फिलोसॉफी, कंसल्टेंट का मीनिंग होता है कॉन्स, 2 वर्ड से लिया हुआ है, कॉन्स एंड टर्न। कॉन्स मीन्स काउंसिलिंग और टर्न मीन्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि द ड्रॉन कोड ऑफ द बो, धनुष की खींची हुई डोरी। एंटरप्रेन्योर ने धनुष की डोरी खींच के तो रखी हुई है, जैसे अर्जुन ने खींच के रखी थी, लेकिन अर्जुन को पूरी मछली दिख रही थी, उसको मछली की आंख नहीं दिख रही थी। द्रोणाचार्य जैसे कंसल्टेंट उनको मिलने से उस अर्जुन को मछली की आंख दिखी। तो यही आई वांट टू से फ्रॉम दिस एग्जांपल, जस्ट एज अर्जुन वाज गाइडेड बाय द्रोणाचार्य that seeing the eye of the fish, we the consultant will also we have to guide the entrepreneur with this way. In the consulting Bible, Alan Vassis defines that when we consultant walk away from a client, the client condition should be better than it was before we arrived, or we have failed. अगर हम लोग एक एंटरप्रेन्योर को कंसल्टिंग देने के बाद अगर बाहर निकलते हैं तो पहले जो था उससे बहुत अच्छा पोजीशन एंटरप्रेन्योर का या इंडस्ट्रीज का होना चाहिए। ये कंसल्टेंट की जिम्मेदारी है, अदरवाइज हम कंसल्टेंट वहाँ फेल हो जाते हैं। इन द कंसल्टिंग, द एंड गेम फॉर अ बिजनेस कंसल्टेंट इज टू ड्राफ्ट अ प्लान फॉर सक्सेस एंड प्रोवाइड रोड मैप दैट द कंपनी कैन इम्प्लीमेंट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। विदाउट रिजल्ट nobody can hire our services, so we have to make some roadmap, और कंसल्टेंट का काम है उस एंटरप्रेन्योर को गाइड करना कि हम लोग ये रोडमैप से जाएंगे तो ये हमारा रिस्पॉन्स या रिजल्ट होना चाहिए। टुडे द एंटरप्रेन्योर वांट एन एक्सपीरियंस बेस्ड बिजनेस कंसल्टेंट who can offer them the right solution. Being an entrepreneur, I feel and know the pain and challenges in the business, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ कंसल्टेंट के साथ साथ। मैं कंसल्टेंसी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बिजनेस में मुझे जो चैलेंजेस और पेन फील हो रहा है वो अगर कंसल्टेंट बिजनेस के फील्ड से नहीं है तो उनको फील नहीं होगा, उनको एज्यूम होगा। एज्यूम करना और फीलिंग लेना बहुत डिफरेंट होता है। तो मुझे वो फीलिंग थी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो सर्टेन एरियाज में कितनी डिफिकल्टीज फील कर रहा है और उन्हें राइट गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से दे आर इन फेल। तो मैंने भी कोशिश की कि मेरे फील्ड में जहाँ वैक्यूम दिख रहा है मेटल फिनिशिंग की फील्ड में, कि वहाँ कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट नहीं है, एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला नहीं है। तो जो भी अवेलेबल है वहाँ से रिसोर्सेज लेके दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज देयर सरफेस फिनिशिंग वैल्यूज इन देयर प्रोडक्ट फॉर एस्थेटिक लुक और फॉर इंजीनियरिंग और टेक्निकल। तो मैं ऑटोमोबाइल में और एरोस्पेस इंडस्ट्री में मेरी कंसल्टेंसी ज़्यादा देता हूँ, बिकॉज वहाँ आगे वैल्यू का रिक्वायरमेंट होता है। तो जितना सुपर पॉलिश अगर आपका प्रोडक्ट होता उतना नॉइस कम रहेगा। अगर हम देखेंगे, मैं एग्जांपल दूंगा कि पहले जो फियाट या एम्बेसडर हम चालू करते थे तो मालूम हो जाता कि भाई भरत भाई जा रहे हैं या छगन भाई जा रहे हैं, राइट। आज वो गाड़ी अगर आप गाड़ी में बैठे हो तब भी आपको नॉइस नहीं सुनने को मिल रहा है। द रीजन इज जो भी रोटेटिंग पार्ट है उनको हाईली पॉलिश किया गया हुआ है ग्राइंडिंग के बाद, और वहाँ हाईली पॉलिश करने के बाद भी स्पेसिफिक एक RI वैल्यू टेक्निकल देखा जाता है ताकि उसका लाइफ स्पान भी कैलकुलेशन करे। तो मतलब ये इतना डीप एनालिसिस वो लोग करते हैं, और ये डीप एनालिसिस से ही आज हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारा अपग्रेडेशन मिला हुआ है। तो आपको
हमको एज ए कंसल्टेंट क्लाइंट का पेन भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है. दिस डे ए कंसल्टेंट इज नॉट रिस्पेक्टेबल इन इंडिया एज मच एज डेवलप्ड कंट्री. मेरा ये स्पेसिफिक मानना है. अगर मैं किसी को मेरा कार्ड देता हूँ, आई एम कंसल्टेंट, तो मुझे बहुत सिंपैथी से देखता है कि यार ये जॉबलेस है या तो अनसक्सेसफुल आदमी है. ये हमारी एक इमेज बन चुकी है एंटरप्रेन्योर के सामने. ये इमेज हमें चेंज करने की बहुत जरूरी है. हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है. When we give our business card as a business consultant to someone, the person in front look at us with sympathy. Either we are jobless or unsuccessful. We have to change this perception from their mind by delivering some unique ideas to increase business and revenue generation. हमें एनालिसिस बहुत करना पड़ेगा, तब जाके हम क्लाइंट की नीड को समझ सकते हैं, क्लाइंट की पेन को समझ सकते हैं, और उसके बाद हमें कुछ एक रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा जिस रिपोर्ट से क्लाइंट है जो एक इमेज में आ जाए कि हाँ ये कंसल्टेंट मुझे कुछ रास्ता दिखा सकता है. अदरवाइज इमेज बहुत हमारी खराब है, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्टी है. यही अगर आप सिनारियो यूएस में जाते हो या जर्मनी में जाते हो और आप अगर कहोगे कि मैं कंसल्टेंट हूँ, तो आपकी इमेज एक बहुत रिस्पेक्टेबल होगी. तो ये इमेज हमें इंडिया में चेंज करने में टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रहा है. नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड. तो ये हमें जो आज प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग धीरे धीरे हमें उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए. तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसी को हम लोग एक रेवेन्यू जनरेशन के माध्यम से हम लोग भी एक अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज है उन लोगों को ट्रेनिंग देके हमारे असिस्टेंट के तौर पे उनको कंसल्टिंग ला सकते हैं, और ऐसे एम्प्लॉयमेंट खड़ा करके हम लोग भी एक इंडस्ट्रीज के तौर पे काम कर सकते हैं. कंसल्टिंग इज ऑल्सो डिफिकल्ट जॉब, ईजी नहीं है, बहुत कंपटीशन है उसमें भी. और यहाँ पे कोई बेंचमार्क भी नहीं है कि मैं सबसे अच्छा एक्सपर्ट कंसल्टेंट हूँ, इसका बेंचमार्क नहीं है. मुझे कहीं ना कहीं डिलीवर करना होगा और वहाँ से रिफर लीड मिलेगी, तब जाके हो सकता है कि मुझे कुछ वापस नई लीड जनरेट हो और मैं एक वापस नया फैक्ट्री में काम करूँ या नए एरिया में काम करूँ. कंपटीशन कैन ऑल्सो बी सीन हियर. हमारे भी अंदर कंपटीशन है, एंड वी ऑल आर द सेम बोट. एंटरप्रेन्योर एंड कंसल्टेंट दोनों को कंपटीशन है, दोनों को मार्केट का प्रॉब्लम है, दोनों को रेवेन्यू जनरेट करना है. सी वी ऑल आर इन सेम बोट. हमें एक दूसरे का पेन समझ के आगे बढ़ना है. कंटिन्यूअस एनालिसिस हैज बिकम नेसेसरी टू स्टैंड इन द मार्केट बाय कंसल्टिंग, लर्निंग, रीडिंग, थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग द फ्यूचर ट्रेंड. अगर हम लोग फ्यूचर ट्रेंड को एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे. हमें आगे वाले 5 साल में क्या होना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी आर सो फास्ट चेंजिंग. जो चीज़ हम लोग पढ़ के कंसल्टिंग दे रहे थे, आज वो सब चीज़ आपको गूगल में इजीली मिल रही है. तो हमारे कंसल्टेंट का मतलब क्या, अगर हम लोग अपग्रेड नहीं होंगे तो हमें भी कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ेगा, मरते दम एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट वांट समथिंग न्यू. बाकी तो वो भी पड़ा हुआ है, वो भी आज 5-10 साल फैक्ट्री चला के बैठा है, तो सर्टेन लेवल तक तो उसको सक्सेस मिला हुआ है. वो सक्सेस से उसके दिमाग में एक चीज है कि मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, बट वो सक्सेसफुल इंसान को माइंड सेट उसका चेंज करके और भी तू आगे जा सकता है, वो सिर्फ हम एज एडवाइजरी कर सकते हैं. वी हैव टू पुश एंटरप्रेन्योर टू इम्प्लीमेंट ए प्रोफेशनल स्ट्रक्चर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिमार्केबल ग्रोथ. हम लोग छोटी मोटी फैक्ट्री बना के बैठ जाते हैं, बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, हम पेडी कल्चर कह सकते हैं. इस पेडी कल्चर का मार्केट इंडिया में बहुत है. ये हमारे लिए पोटेंशियल मार्केट है. इन इंडिया देयर इज अराउंड 80% of the market vacuum
फॉर द कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज। आज अगर 100 फैक्ट्री का अगर आप सर्वे करोगे तो 100 में से मैं दावे के साथ कहूँगा कि शायद एक फैक्ट्री में कंसल्टेंट होगा। शायद 1000 फैक्ट्री करोगे तब जाके आपको मुश्किल से 10-12 प्रोफेशनल कंसल्टेंट मिलेंगे। तो हमारे पास एक बहुत वैक्यूम मार्केट है जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, MBA में एग्जांपल देते हैं कि 2 बंदे को कहीं अफ्रीका भेजा था और वहाँ किसी ने जूते नहीं पहने, तो एक बंदे ने बोला कि सर यहाँ पे तो जूते का मार्केट है ही नहीं, तो आप अफ्रीका में लॉन्च मत करो प्रोडक्ट, राइट। और एक बंदे को वापस 6 महीने बाद दूसरे बंदे को भेजा, उसने रिपोर्ट दिया कि सर यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है, आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहिए। तो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो गया? एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट मैनेजर ने डिफरेंट रिपोर्ट क्यों दिया? परसेप्शन, उनका माइंड चेंज दोनों का। एक ने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी और एक ने बोला सर यहाँ तो कोई जूते नहीं पहन रहा है, यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम इनको थोड़ा एजुकेट करेंगे तो हमारी जूते की फैक्ट्री यहीं डालनी पड़ेगी, इंडिया से आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम कंसल्टिंग का मार्केट आ जैसा है। कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्री में जाओगे तो कस्टमर अपनी खुद नॉलेज से जितना एक्सपांड कर सकता है उतना कर रहा है। अगर वहाँ पे राइट गाइड, राइट पथदर्शक या राइट द्रोणाचार्य मिल गया तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ जबरदस्त होने वाला है। तो हमें वो एक वैक्यूम देखना है कि कहाँ है, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हमें ढूंढना है। और उस एंटरप्रेन्योर को अगर आप मछली की आंख की तरह उसको एक विजन दे दोगे तो हो सकता है इंडिया हमारा जो मोदी सरकार का, मोदी जी का सपना है, $5000 ट्रिलियन का सपना, वो हम लोग पूरा कर सकते हैं 2025 में। तो ये हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस मिशन को कैसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेस यूनिट्स आर फैमिली बिजनेस and their maximum lifespan is 2 generation only। 2 जनरेशन तक छोटी फैक्ट्रियां चल रही है। क्यों? Because soon or after they will end or collapse due to internal egos and disturbance in the family background। ये हमारे लिए चैलेंज भी बहुत है। हमें धंधा फैमिली ऑर्गेनाइजेशन से ही लेना है, हमें पोटेंशियल वहीं दिख रहा है, लेकिन वो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमें डिस्प्यूट भी दिख रहा है कि 2 भाई है या 2 भाई और 2 भाई के बेटे, 4 बेटे, और सबके दिमाग अलग है, उनको सबको अलाइन कैसे करना है। बिजनेस तो वहीं दिख रहा है हमको, तो अलाइनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें आज जो हमारी एक्सपीरियंस से हमें जो कंसल्टिंग के बिजनेस में आए हैं उसमें ये चीज़ अलाइन करना पड़ेगा, हमारे अंदर डालना पड़ेगा कि कैसे फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को हम एक साथ जुड़े, क्योंकि उनका एक डिज़ायर भी होता है कि सब साथ में चले, लेकिन साथ में चलने के बावजूद भी एक सक्सेस नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फैक्ट्री का एग्जांपल दूंगा जहाँ 4 भाई और उनके बेटे, वैसे 16 फैमिली मेंबर का फैक्ट्री। अब उनका एक डिज़ायर तो है कि सबको साथ में रहना है, बट ग्रो नहीं कर पा रहा। तो रीज़न इज वहाँ पानी का मटका पड़ा है, कोई भी आके पानी पी जाता है और जिसको आगे लगता है वो पानी भर के जाता है। मटके में पानी कहाँ से आता है, पानी कौन कितना पी रहा है, वो एनालिसिस ही नहीं। ऐसी इंडस्ट्रीज में कॉलेप्स के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ जो पर्सन कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है सबको साथ में लेके, वो अगर एक दिन नहीं रहा फैक्ट्री के अंदर तो मटके में पानी कौन भरेगा वापस। सेम आज हमारी फैक्ट्रियों की हालत यही है फैमिली बिजनेस की। कौन आता है कौन जाता है मालूम नहीं, सबका ईगो क्लैश होता है और सब अपने अपने आप को लीडर समझते हैं। इस एनवायरनमेंट में हमें थोड़ा कुशन और कंफर्ट ढूंढना पड़ेगा और इन लोगों को गाइड करना पड़ेगा। India small scale sector want to grow, but they are not growing because of their foggy vision, deficiency in leadership quality and visionless, their attitude, unorganized company culture and a group of more than one decision maker। ये कंपनी आज नहीं तो कल कॉलेप्स होगी।
ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बहुत है इंडिया के अंदर। छोटी इंडस्ट्रीज में ही बिजनेस है, स्मॉल स्केल सेक्टर में ही बिजनेस है। इस चैलेंज को हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके साथ हमें उस ऑर्गेनाइजेशंस को फैमिली बेस्ड उनका जो भी डिजायर है साथ में रहने का, उसको साथ में लेके चलना है। एज ए कंसल्टेंट, दिस सिचुएशन इज द वेरी बैड सिचुएशन फॉर इंडियन स्मॉल स्केल सेक्टर्स। We have to guide and educate them to build a professional setup with their qualifications, and also we have to select the responsible person from their team, और एक लीडर वहाँ एक डेब्यूट करना पड़ेगा आपको। हो सकता है इनिशियल दिक्कत होगी क्योंकि घर में सभी लोग लीडर अपने आप को समझते हैं, तो वहाँ पे उनके एजुकेशन के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से और उनके IQ और EQ के हिसाब से एक लीडर को डिफाइन करना पड़ेगा और सबको अलाइन करना पड़ेगा। तब जाके हो सकता है आप जिस इंडस्ट्रीज में कंसल्टिंग दे रहे हो वहाँ आपको रिजल्ट मिलने की संभावना मिल जाती है। एज ए कंसल्टेंट, my approach to transforming the family business from the traditional passive and comfortable culture to systematic modern organizations। मैं टेक्निकल कंसल्टेंट जरूर हूँ, लेकिन जहाँ पे भी मैं कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ और मुझे जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मैंने इंडिया में अक्सर देखा हुआ है कि फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ब्रांड नहीं कर पाया या कभी भी 15-20 साल 50 साल नहीं चल पाया। यूएस में और जर्मनी में अगर देखोगे तो 150 साल पुरानी फैक्ट्रियाँ आज फैमिली बेस्ड चल रही है, जिनका पब्लिक इशू नहीं। फैमिली में जो 4-5 लोग हैं कुछ तो नहीं चलते आ रही फैक्ट्री। ऐसे इंडिया में मुझे आज तक एक फैक्ट्री नहीं दिखी है, होगी शायद, बट मेरे नोटिस में नहीं आई कि जो फैमिली बेस्ड हो और वैल्यू को लेके आज 50 या 100 साल कर चुकी है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। हम लोग इस माइनस पॉइंट को अगर समझ लेंगे, एंटरप्रेन्योर समझ लेगा और एज ए कंसल्टेंट अगर हम उनको गाइड करेंगे तो हो सकता है कि इंडियन इंडस्ट्रीज भी आप ग्लोबल मार्केट में दिखा सकते हो कि फैमिली बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कुछ तो नहीं चल रही है और लॉन्ग चल रही है। Most family business want to grow, but do not want to appoint a consultant. क्यों? Because they have had some success in last 10 years. So they believe they will go further and become more successful. मैंने भी कोशिश की थी कि यार मुझे क्या कंसल्टेंट सिखाएगा। एक दिन ऐसा था कि यार कंसल्टेंट क्या सिखाएगा मुझे, मैं 20 साल से फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मुझे कंसल्टेंट की क्या जरूरत है। ऑलरेडी मैं बीकॉम किया था, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो मेरे अंदर मैंने सीखा ही था और CS किया हुआ है मैंने, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा नॉलेज तो मिला था। तो मैं एक सर्टेन लेवल तक तो मैं मेरी फैक्ट्री को लेके आ गया, इंडस्ट्रीज को लेके आ गया, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार कुछ कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। एंड आई स्टार्टेड टू फाइंड गुड कंसल्टेंट। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट को मिलने की कोशिश की, मिला भी, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं मिला कि जो मुझे आगे का फर्दर रास्ता दिखाई दे। उन्होंने मुझे आगे के 2-3 साल के रास्ता दिखाया, लेकिन आने वाले 25 साल का रास्ता अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिखाया। मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ कंसल्टेंट। बीइंग ए कंसल्टेंट, आई वांट टू ग्रो माय कंपनी, आई नीड दोज कंसल्टेंट हु कैन रन माय बिजनेस फर्दर 100 years। So this is a very good challenge from me कि मेरी फैक्ट्री को मैं 100 साल क्यों चलाऊं और क्यों चलाना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेसमैन ऐसा समझता है कि मैं जो बिजनेस करूं वो कुछ तो नहीं चलेगा, लेकिन नहीं चल पा रहा। रीजन अच्छे एजुकेशन का अभाव या एक सर्टेन लेवल तक आपका जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर चुके हैं आप, उसके बाद अब आपको कुछ नया चाहिए। और नया कब मिलेगा? जब आप मार्केट के साथ चलोगे, फ्यूचर ट्रेंड जानोगे। टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन ही चेंज हो रही है, मतलब चेंज शब्द तो मैं यूज ही नहीं करूँगा, ड्रामेटिकली यूज ही नहीं करूँगा, मतलब क्रांति आ चुकी है। आज आप जहाँ हो 1 घंटे बाद अगर बाहर जाओगे कुछ नया मिलेगा। IT सेक्टर में तो जबरदस्त कॉम्पिटिशन है। आज जो सीखा आपने वो कल आपके लिए आउटडेटेड है।
हर टाइम आपको सीखना पड़ेगा। वैसे ही हमारी फील्ड में भी हर टाइम कुछ नया सीखना पड़ेगा, बिकॉज जो फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे सेकंड जनरेशन आ चुकी है और सेकंड जनरेशन का थॉट फर्स्ट जनरेशन से अलाइन नहीं हो रहा, फाइटिंग हो रही है। बच्चा बोल रहा है कि पापा तुमने खबर नहीं पड़ती, और पापा बोल रहे हैं कि बेटे पापड़ महीने पे ले, तेरे को मालूम नहीं पड़ता है, राइट। यहाँ फाइटिंग हो रही है और आज बेटा बाप की फैक्ट्री में बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो इंडिया छोड़ के कहीं और फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार है। क्यों? वहाँ उसको फ्रीडम मिल रही है, वहाँ उसको उसकी थॉट के हिसाब से काम करने का मौका मिल रहा है, जो आज फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में वैक्यूम है। हम बच्चे को अपने पेरेंट ही उसको नर्सिंग ऐसा करते कि तरह ना खबर पड़े रेवा दम कर दे। सॉरी कभी कभी गुजराती आ रहा है, बट दोज वर्ड गुजराती में ही आपको मैं बोल सकता हूँ। तो ये हमारा पेरेंटिंग कल्चर भी प्रॉपर नहीं है। बेटा ने नहीं खबर पड़ती अथवा बेटे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे करो। से ड्रीम इज चेंज। आज जो बेटा पढ़ के आया हुआ है ना, वो आपको देखा भी है और स्कूल में पढ़ा भी है, और उसने जो स्कूल में पढ़ा है वो टोटली डिफरेंट है। मैंने मेरी बेटी है, छोटे भाई की बेटी, जो अभी 10th में है, 11th में, उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट मैंने उसका पुस्तक देखा परसों। हम जो पढ़े थे वो है ही नहीं हमें, कितना चेंज हो गया। तो आज बच्चे हमारे हमसे होशियार है। जो मैं आज सीख रहा हूँ कंसल्टेंट के पास, वो आज कॉलेज में स्कूल में 10वीं 12वीं में पढ़ा रहे हैं। जब हमको कॉलेज में आता था शायद, वो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे बच्चे। तो ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। तो फ्रीलांस जब तक आप आपके बच्चों को या एम्प्लॉय को नहीं दोगे, तब तक आपकी फैक्ट्री ग्रो नहीं करेगी, और वो फैक्ट्री इसीलिए फैमिली ऑर्गेनाइजेशन डम हो जाता है। बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, कंसल्टेंट क्यों चाहिए? कंसल्टेंट का रीजन क्या? अगर बिजनेसमैन, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं बहुत एक अच्छी कार चला लेता हूँ और स्पीड में कार चला लेता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रेस में पार्टिसिपेट हो जाऊँ। अगर मुझे रेस में पार्टिसिपेट होना है तो मुझे कार कैसी चलानी, कहाँ ब्रेक मारना, कहाँ कितने एंगल से टर्न मारना, कहाँ गियर शिफ्ट करना, मुझे गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। विदाउट स्किल मैं रेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, भले मैं कितनी भी अच्छी कार क्यों ना चलाता। हमारी कंसल्टेंट इसलिए चाहिए कि अगर आपको रेस में विन करना है तो यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस। अगर आप रेस में गाड़ी चला लिया तो जरूर एक्सीडेंट करोगे, कुछ दूरी तक तो जरूर जाओगे, बट एक्सीडेंट जरूर कर लोगे। या तो हो सकता है एक्सीडेंट ना करो तो स्लो जाओगे तो डेस्टिनेशन पहुंचोगे, लेकिन तब तक बहुत दूर आप रह जाओगे, बाकी लोग बहुत आगे चले जाएंगे। एक्सपर्ट का यहाँ जरूरत है। अगर आपको रेस में विन करना है, बिजनेस में अगर आपको विन करना है, एक रिमार्केबल ग्रोथ करना है, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस बहुत जरूरी है। और आज मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कंसल्टेंट एसोसिएशन ऐसा है इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह के कंसल्टेंट का एक कम्युनिटी खड़ा करके एंटरप्रेन्योर को, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है। इफ यू थिंक यू आर वेरी गुड एट ड्राइविंग द कार, that does not means you can participate and win the race. If you want to participate and win the race, you need to enhance your skill with expert advice. बहुत जरूरी है। कंसल्टेंट एज एन एक्सपर्ट, हमारी एक्सपर्टाइज क्या है? An expert can help build a roadmap and make you aware to potential challenges in business. हमें एक भ्रांति होती है कि ये होगा तो, बट अगर कंसल्टेंट आपने डेब्यूट किया है तो कंसल्टेंट आपको एक ब्लूप्रिंट बना के दे देगा कि यहाँ पे आपको चैलेंजेस आ सकती है, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम लोग ये प्लान भी बना सकते हैं। एज ए एक्सपर्ट कंसल्टेंट we have to convey the message. Expert can guide you how to win the race, but they do not give a guarantee to win the race. हम लोग एंटरप्रेन्योर को
गाइड कर सकते हैं रेस जीतने के लिए, बट हम गारंटी नहीं दे सकते कि आप रेस जीतोगे। क्यों? अल्टीमेटली कार किसको चलाना है? एंटरप्रेन्योर को चलाना है। स्टीयरिंग उसके हाथ में, गियर उसके हाथ में, ब्रेक उसके हाथ में, एक्सीलरेटर उसके हाथ में। तो हम तो उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि आप रेस जीतोगे। तो हमें ये उनको ठसाना पड़ेगा कि भाई हम जो कहेंगे हो सकता है कि हमारे परसेप्शन से थोड़े अलग हो, तो आपका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ रखो और उस बेस पे हम लोग रोड मैप बनाएं, तब जाके हमको सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा है। बट इट डज नॉट मीन कि आपने एक्सपर्ट ले लिया तो आपका फैक्ट्री चल जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे या 100 करोड़ 200 करोड़ का धंधा कर लोगे। तो ये हमें उनको ठसाना भी पड़ेगा कि अल्टीमेटली तो काम आपको करना है, इम्प्लीमेंटेशन आपको लेना है। Because after all, the entrepreneur is responsible for the implementation of the system to build an organization. पेडी कल्चर से ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग गाइड कर सकते हैं, हम लोग एक वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसको चलाना वो उनका जिम्मेदारी है। लेकिन आज मैं यहाँ थोड़ा एक आपको फोर्स करके कह सकता हूँ कि एज ए कंसल्टेंट हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग कंसल्टिंग देके चले जाते हैं ना, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, क्योंकि कंसल्टेंट वापस वही तालाब के पानी में चला जाता है जहाँ उसका डे टू डे प्रॉब्लम होता है। तो जब आप हफ्ते बाद उसको पूछोगे क्या हुआ, भाई कसू नहीं करी हूँ, तो आज काम अपना सही हो, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा एक्सपीरियंस मिलता होगा भरत भाई आपको, राइट? एज ए कंसल्टेंट ये मुझे भी मिलता है कि हम लोग गाइड करते हैं, तो कंसल्टेंट मतलब एंटरप्रेन्योर बोलता है कि सर आप चले गए, बाद में टाइम ही नहीं मिला, ये प्रोजेक्ट आ गया, वो प्रोजेक्ट आ गया, तो हम नहीं कर पाए। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, when the entrepreneur does not implement the system as per expert advice, the entrepreneur face hurdles during the business and blame to us. In this case, loss both the customer and future. हम लोग यहाँ पे दो लॉस करते हैं, फ्यूचर रेफरेंस भी लॉस कर लेते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर भी लॉस कर लेते हैं। तो हमें एक उनके पीछे भागना पड़ेगा, भाई इम्प्लीमेंटेशन करो। जो हर्षल भाई मेरी फैक्ट्री में कंसल्टेंट थे 2 साल, हर्षल भाई ने रेफरेंस मैंने हर्षल भाई का दिया था। हर्षल भाई 2 साल हमारे पीछे पड़े थे, ये नहीं इम्प्लीमेंट तो करવું જ પડશે તમારે, नहीं तो તમે આ पोजीशन पर पहुंचो જ नहीं, તમે सक्सेस થશો જ नहीं। तो इस तरह से प्रेशर देके इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। विदाउट मॉनिटरिंग एज ए कंसल्टेंट वो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ही उसको एंटरप्रेन्योर को छोड़ देंगे कि चले आप कारखाना में तो नहीं जाओगे, तो आप फैक्ट्री में नहीं जाओगे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू विन द रेस द कंसल्टेंट हैज टू कंसंट्रेट ऑन द विजन with the blueprint and work on monitoring and implementing the culture in the systems. So now we are more responsible for our client success. As a consultant, we find some technique to convince the entrepreneur and pull them to our door. The thinking of an entrepreneur is very precise about the selection of the right consultant or right business guru. Our past performance and positive feedback will attract potential customer towards us. New learning for consultant. Today also most consultants are not having the fundamental of business success. They read books, collect the content and represent as per their ideas. जैसे पुराने कंटेंट में नया कवर बना दो या पुराना दारू नई बोतल में, वो जो हम एग्जांपल देते हैं, सिमिलर आज इतने सारे कंसल्टेंट मैं कहूँगा पैदा हो चुके हैं कि हमें किससे बात करना हमें नहीं मालूम होता। और आजकल YouTube में अगर जाओगे तो बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट मिल रहे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े गुरु दिखाते हैं, और छोटे छोटे जो मेरे यहाँ से सेल्समैन या सेल्स मैनेजर रह चुके हैं वो भी बिजनेस कंसल्टिंग करके बिजनेस में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है लोग पढ़ के कंसल्टेंट बन जाते हैं, ये हमारा काम नहीं है। These people are called the fact business guru
and they are destroying our reputation in consulting market. हमारे लिए थ्रोट भी है जो नए बिजनेस गुरु आ चुके हैं. आज हम लोग इतना अच्छा पढ़ चुके हैं. आज सर को मैं मिला जो IIM में प्रोफेसर थे और यहाँ काफ़ी एक्सपर्ट है, उनको मिला तो दे आर एक्सपीरियंस बेस्ड कंसल्टेंट. उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आज कुछ कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्रीज को. प्लीज. तो ये हमारा एक्सपर्टाइज हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं. बट जो नए आज 20, 22, 25 या 30 साल के जो लोग हैं एज ए बिजनेस गुरु हमारे सामने आए, उसको कैसे चैलेंज करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा एक बैड टाइम भी है. अगर हम लोग कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि नया जो जनरेशन आ रहा है वो बहुत आउटस्मार्ट है. We have to understand the pain of the people in the business they feel in their business activity. Apart from consultations, as from my perspective, business analytics is also a key factor generating the most revenue today from their hypothesis testing. नए जो आज कंसल्टेंट ही कहेंगे, बट कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस एनालिस्ट, ये दो में बहुत पतली भेद रेखा है, बहुत पतली. जो नया जनरेशन आ चुका है वो बिजनेस को एनालिसिस करके आपको एक रोड मैप दे रहे हैं, और ये लोग कल जाके ऑटोमेटिकली कंसल्टेंट बन जाएंगे. हमारे लिए यहाँ बहुत चैलेंज है. ये हमें आउटस्मार्ट कर देगा या हमें ओवरलेप कर देगा. तो apart from the consultation, as from my perspective, business analytics, देखेंगे मैं एग्जांपल दूंगा कि पहले जो फियाट या एम्बेसडर हम चालू करते थे तो मालूम हो जाता कि भाई भरत भाई जा रहे हैं या छगन भाई जा रहे हैं, राइट. आज वो गाड़ी, अगर आप गाड़ी में बैठे हो तब भी आपको नॉइज नहीं सुनने को मिल रहा है. द रीजन इज जो भी रोटेटिंग पार्ट है उनको हाईली पॉलिश किया गया हुआ है ग्राइंडिंग के बाद, और वहाँ हाईली पॉलिश करने के बाद भी स्पेसिफिक एक RI वैल्यू टेक्निकल देखा जाता है ताकि उसका लाइफ स्पान भी कैलकुलेशन करे. तो मतलब ये इतना डीप एनालिसिस वो लोग करते हैं, और ये डीप एनालिसिस से ही आज हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारा अपग्रेडेशन मिला हुआ है. तो आपको, हमको एज ए कंसल्टेंट क्लाइंट का पेन भी बहुत जानना जरूरी हो जाता है. दिस डे ए कंसल्टेंट is not respectable in India as much as developed country. मेरा ये स्पेसिफिक मानना है. अगर मैं किसी को मेरा कार्ड देता हूँ, आई एम कंसल्टेंट, तो मुझे बहुत सिंपैथी से देखता है कि यार ये जॉबलेस है या तो अनसक्सेसफुल आदमी है. ये हमारी एक इमेज बन चुकी है एंटरप्रेन्योर के सामने. ये इमेज हमें चेंज करने की बहुत जरूरी है. हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क है. When we give our business card as a business consultant to someone, the person in front look at us with sympathy. Either we are jobless or unsuccessful. We have to change this perception from their mind by delivering some unique ideas to increase business and revenue generation. हमें एनालिसिस बहुत करना पड़ेगा, तब जाके हम क्लाइंट की नीड को समझ सकते हैं, क्लाइंट की पेन को समझ सकते हैं, और उसके बाद हमें कुछ एक रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा जिस रिपोर्ट से क्लाइंट है जो एक इमेज में आ जाए कि हाँ ये कंसल्टेंट मुझे कुछ रास्ता दिखा सकता है. अदरवाइज इमेज बहुत हमारी खराब है, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्टी है. यही अगर आप सिनारियो US में जाते हो या जर्मनी में जाते हो और आप अगर कहोगे कि मैं कंसल्टेंट हूँ, तो आपकी इमेज एक बहुत रिस्पेक्टेबल होता है. तो ये इमेज हमें इंडिया में चेंज करने में टाइम लगेगा, बट ग्रेजुअली वो इंक्रीज हो रहा है. नाउ पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड. तो ये हमें जो आज प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि लोग धीरे धीरे हमें एक्सपेक्ट, उनका जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करने के लिए कुछ एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए. तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसी को हम लोग एक रेवेन्यू जनरेशन के माध्यम से हम लोग भी एक अनएम्प्लॉयमेंट एरियाज है उन लोगों को ट्रेनिंग देके हमारे असिस्टेंट के तौर पे उनको कंसल्टिंग ला सकते हैं,
और ऐसे एम्प्लॉयमेंट खड़ा करके हम लोग भी एक इंडस्ट्रीज के तौर पे काम कर सकते हैं। कंसल्टिंग इज ऑल्सो डिफिकल्ट जॉब, इजी नहीं है, बहुत कंपटीशन है उसमें, और यहाँ पे कोई बेंचमार्क भी नहीं है कि मैं सबसे अच्छा एक्सपर्ट कंसल्टेंट हूँ, इसका बेंचमार्क नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं डिलीवर करना होगा और वहाँ से रिफर लीड मिलेगी, तब जाके हो सकता है कि मुझे कुछ वापस नई लीड जनरेट हो और मैं एक वापस नया फैक्ट्री में काम करूँ या नए एरियाज में काम करूँ। कंपटीशन कैन ऑल्सो बी सीन हियर, हमारे भी अंदर कंपटीशन है एंड वी ऑल आर द सेम बोट, एंटरप्रेन्योर एंड कंसल्टेंट दोनों को कंपटीशन है, दोनों को मार्केट का प्रॉब्लम है, दोनों को रेवेन्यू जनरेट करना है। सी वी ऑल आर इन सेम बोट, हमें एक दूसरे का पेन समझ के आगे बढ़ना है। Continuous analysis has become necessary to stand in the market by consulting, learning, reading, thinking and observing the future trend. अगर हम लोग फ्यूचर ट्रेंड को एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे। हमें आगे वाले 5 साल में क्या होना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी आर सो फास्ट चेंजिंग। जो चीज़ हम लोग पढ़ के कंसल्टिंग दे रहे थे, आज वो सब चीज़ आपको गूगल में इजीली मिल रही है। तो हमारे कंसल्टेंट का मतलब क्या, अगर हम लोग अपग्रेड नहीं हो गए तो हमें भी कंटिन्यूस इंडस्ट्रीज के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ेगा, मरते दम एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बिकॉज इंडस्ट्रियलिस्ट वांट समथिंग न्यू। बाकी तो वो भी पड़ा हुआ है, वो भी आज 5-10 साल फैक्ट्री चला के बैठा है, तो सर्टेन लेवल तक तो उसको सक्सेस मिला हुआ है। वो सक्सेस से उसके दिमाग में एक चीज तो है कि मैं सक्सेसफुल इंसान हूँ, बट वो सक्सेसफुल इंसान को माइंड सेट उसका चेंज करके और भी तो आगे जा सकता है, वो सिर्फ हम एज एडवाइजरी कर सकते हैं। वी हैव टू पुश एंटरप्रेन्योर टू इम्प्लीमेंट ए प्रोफेशनल स्ट्रक्चर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिमार्केबल ग्रोथ। हम लोग छोटी मोटी फैक्ट्री बना के बैठ जाते हैं, बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, हम पेडी कल्चर कह सकते हैं। इस पेडी कल्चर का मार्केट इंडिया में बहुत है, ये हमारे लिए पोटेंशियल मार्केट है। इन इंडिया देयर इज अराउंड 80% ऑफ द मार्केट वैक्यूम फॉर द कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज। आज अगर 100 फैक्ट्री का अगर आप सर्वे करोगे तो 100 में से मैं दावे के साथ कहूँगा कि शायद एक फैक्ट्री में कंसल्टेंट होगा। शायद 1000 फैक्ट्री करोगे तब जाके आपको मुश्किल से 10-12 प्रोफेशनल कंसल्टेंट मिलेंगे। तो हमारे पास एक बहुत वैक्यूम मार्केट है जिसको हम लोग अपॉर्चुनिटी के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, MBA में एग्जांपल देते हैं कि 2 बंदे को कहीं अफ्रीका भेजा था और वहाँ किसी ने जूते नहीं पहने, तो एक बंदे ने बोला कि सर यहाँ पे तो जूते का मार्केट है ही नहीं, तो आप अफ्रीका में लॉन्च मत करो प्रोडक्ट, राइट। और एक बंदे को वापस 6 महीने बाद दूसरे बंदे को भेजा, उसने रिपोर्ट किया कि सर यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है, आपको यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहिए। तो ये 2 कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो गया? एक ही कंपनी के 2 प्रोडक्ट मैनेजर ने डिफरेंट रिपोर्ट क्यों दिया? परसेप्शन, उनका माइंड चेंज दोनों। एक ने अपॉर्चुनिटी नहीं देखी और एक ने बोला सर यहाँ तो कोई जूते नहीं पहन रहा है, यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम इनको थोड़ा एजुकेट करेंगे तो हमारी जूती की फैक्ट्री यहीं डालनी पड़ेगी, इंडिया से आपको एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम कंसल्टिंग का मार्केट आज ऐसा है, कहीं पे भी कोई भी फैक्ट्री में जाओगे तो कस्टमर अपनी खुद नॉलेज से जितना एक्सपांड कर सकता है उतना कर रहा है। अगर वहाँ पे राइट गाइड, राइट पर्सन या राइट द्रोणाचार्य मिल गया तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ जबरदस्त होने वाला है। तो हमें वो एक वैक्यूम देखना है कि कहाँ है, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हमें ढूंढना है। और उस एंटरप्रेन्योर को अगर आप मछली की आँख की तरह उसको एक विजन दे दोगे तो हो सकता है इंडिया हमारा जो मोदी सरकार का, मोदी जी का सपना है, $5000 ट्रिलियन का सपना, वो हम लोग पूरा कर सकते हैं 2025 में। तो ये हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम इस मिशन को कैसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। Most of the small business units are family business and their maximum lifespan
इस 2 जनरेशन ऑनलाइन, 2 जनरेशन तक छोटी फैक्ट्रियां चल रही है। क्यों? बिकॉज सून और आफ्टर दे विल एंड और कोलैप्स ड्यू टू इंटरनल इकोस एंड डिस्टर्बेंस इन द फैमिली बैकग्राउंड। ये हमारे लिए चैलेंज भी बहुत है। हमें धंधा फैमिली ऑर्गेनाइजेशन से ही लेना है, हमें पोटेंशियल वहीं दिख रहा है, लेकिन वो फैमिली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमें डिस्प्यूट भी दिख रहा है कि 2 भाई है या 2 भाई और 2 भाई के बेटे 4 बेटे, और सबके दिमाग अलग है, उनको सबको अलाइन कैसे करना है। बिजनेस तो वहीं दिख रहा है हमको, तो अलाइनमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें आज जो हमारी एक्सपीरियंस से हमें जो कंसल्टिंग बिजनेस में आए, उसमें ये चीज़ अलाइन करना पड़ेगा, हमारे अंदर डालना पड़ेगा कि कैसे फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को हम एक साथ जुड़े, क्योंकि उनका एक डिज़ायर भी होता है कि सब साथ में चले, लेकिन साथ में चलने के बावजूद भी एक सक्सेस नहीं मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक फैक्ट्री का एग्जांपल दूंगा जहाँ 4 भाई और उनके बेटे, वैसे 16 फैमिली मेंबर का फैक्ट्री। अब उनका एक डिजायर तो है कि सबको साथ में रहना है, बट ग्रो नहीं कर पा रहा। तो रीजन इज वहाँ पानी का मटका पड़ा है, कोई भी आके पानी पी जाता है और जिसको आगे लगता है वो पानी भर के जाता है। मटके में पानी कहाँ से आता है, पानी कौन कितना पी रहा है, वो एनालिसिस ही नहीं। ऐसी इंडस्ट्रीज में कॉलेप्स के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ जो पर्सन कॉम्प्रोमाइज करके चल रहा है सबको साथ में लेके, वो अगर एक दिन नहीं रहा फैक्ट्री के अंदर, तो मटके में पानी कौन भरेगा वापस। सेम आज हमारी फैक्ट्रियों की हालत यही है फैमिली बिजनेस की। कौन आता है कौन जाता है मालूम नहीं, सबका ईगो क्लैश होता है और सब अपने अपने आप को लीडर समझते हैं। इस एनवायरनमेंट में हमें थोड़ा कुशन और कंफर्ट ढूंढना पड़ेगा और इन लोगों को गाइड करना पड़ेगा। India small scale sector want to grow, but they are not growing because of their foggyism. Deficiency in leadership quality and visionless, their attitude, unorganized company culture, and a group of more than one decision maker. ये कंपनी आज नहीं तो कल कोलैप्स होगी। ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बहुत है इंडिया के अंदर। छोटी इंडस्ट्रीज में ही बिजनेस है, स्मॉल स्केल सेक्टर में ही बिजनेस है। इस चैलेंज को हमें कैसे सॉल्व करना है, उसके साथ हमें उस ऑर्गेनाइजेशंस को फैमिली बेस्ड उनका जो भी डिजायर है साथ में रहने का, उसको साथ में लेके चलना है। एज ए कंसल्टेंट, this situation is the very bad situation for Indian small scale sectors. We have to guide and educate them to build a professional setup with their qualifications, and also we have to select the responsible person from their team, और एक लीडर वहाँ एक डेब्यूट करना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियल दिक्कत होगी क्योंकि घर में सभी लोग लीडर अपने आप को समझते हैं, तो वहाँ पे उनके एजुकेशंस के हिसाब से, उनके नॉलेज के हिसाब से और उनके IQ और EQ के हिसाब से एक लीडर को डिफाइन करना पड़ेगा और सबको अलाइन करना पड़ेगा। तब जाके हो सकता है आप जिस इंडस्ट्रीज में कंसल्टिंग दे रहे हो वहाँ आपको रिजल्ट मिलने की संभावना मिल जाती है। एज ए कंसल्टेंट, my approach to transforming the family business from the traditional passive and comfortable culture to systematic modern organizations. मैं टेक्निकल कंसल्टेंट जरूर हूँ, लेकिन जहाँ पे भी मैं कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ और मुझे जहाँ पे भी ऐसा लगता है कि ये फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मैंने इंडिया में अक्सर देखा हुआ है कि फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ब्रांड नहीं कर पाया या कभी भी 15-20 साल 50 साल नहीं चल पाया। यूएस में और जर्मनी में अगर देखोगे तो 150 साल पुरानी फैक्ट्रियाँ आज फैमिली बेस्ड चल रही है, जिनका पब्लिक इश्यू नहीं है। फैमिली में जो 4-5 लोग हैं उस तो नहीं चलते आ रही फैक्ट्री। ऐसे इंडिया में मुझे आज तक एक फैक्ट्री नहीं दिखी है, होगी शायद, बट मेरे नोटिस में नहीं आई कि जो फैमिली बेस्ड हो और वैल्यू को लेके आज 50 या 100 साल कर चुकी है।
हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। हम लोग इस माइनस पॉइंट को अगर समझ लेंगे, एंटरप्रेन्योर समझ लेगा और एज ए कंसल्टेंट अगर हम उनको गाइड करेंगे तो हो सकता है कि इंडियन इंडस्ट्रीज भी आप ग्लोबल मार्केट में दिखा सकते हो कि फैमिली बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कुछ तो नहीं चल रही है और लॉन्ग चल रही है। Most family business want to grow, but do not want to appoint a consultant. क्यों? Because they have had some success in last 10 years. So they believe they will go further and become more successful. मैंने भी कोशिश की थी कि यार मुझे क्या कंसल्टेंट सिखाएगा। एक दिन ऐसा था कि यार कंसल्टेंट क्या सिखाएगा मुझे, मैं 20 साल से फैक्ट्री चला रहा हूँ, तो मुझे कंसल्टेंट की क्या जरूरत है। ऑलरेडी मैं बीकॉम किया था, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो मेरे अंदर मैंने सीखा ही था और सीएस किया हुआ है मैंने, तो मुझे वहाँ पे भी थोड़ा नॉलेज तो मिला था। तो मैं एक सर्टेन लेवल तक तो मैं मेरी फैक्ट्री को लेके आ गया, इंडस्ट्रीज को लेके आ गया। लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नहीं यार, कुछ कम हो रहा है, कुछ कम हो रहा है। एंड आई स्टार्टेड टू फाइंड गुड कंसल्टेंट। मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट को मिलने की कोशिश की, मिला भी, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं मिला कि जो मुझे आगे का फर्दर रास्ता दिखाई दे। उन्होंने मुझे आगे के 2-3 साल के रास्ता दिखाया, लेकिन आने वाले 25 साल का रास्ता अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिखाया। मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ कंसल्टेंट। बीइंग ए कंसल्टेंट, आई वांट टू ग्रो माय कंपनी, आई नीड दोज कंसल्टेंट हु कैन रन माय बिजनेस फर्दर 100 years। सो दिस इज अ वेरी गुड चैलेंज फ्रॉम मी कि मेरी फैक्ट्री को मैं 100 साल क्यों चलाऊं और क्यों चलाना चाहिए और कैसे चलाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेसमैन ऐसा समझता है कि मैं जो बिजनेस करूं वो कुछ तो नहीं चलेगा, लेकिन नहीं चल पा रहा। रीजन अच्छे एजुकेशन का अभाव है, या एक सर्टेन लेवल तक आपका जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर चुके हैं आप, उसके बाद अब आपको कुछ नया चाहिए। और नया कब मिलेगा? जब आप मार्केट के साथ चलोगे, फ्यूचर ट्रेंड जानोगे। टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन ही चेंज हो रही है, मतलब चेंज शब्द तो मैं यूज ही नहीं करूँगा, ड्रामेटिकली यूज ही नहीं करूँगा, मतलब क्रांति आ चुकी है। आज आप जहाँ हो 1 घंटे बाद अगर बाहर जाओगे कुछ नया मिलेगा आपको। आईटी सेक्टर में तो जबरदस्त कॉम्पिटिशन है, आज जो सीखा आपने वो कल आपके लिए आउटडेटेड है। हर टाइम आपको सीखना पड़ेगा। वैसे ही हमारी फील्ड में भी हर टाइम कुछ नया सीखना पड़ेगा, बिकॉज जो फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे सेकंड जनरेशन आ चुकी है और सेकंड जनरेशन का थॉट फर्स्ट जनरेशन से अलाइन नहीं हो रहा, फाइटिंग हो रही है। बच्चा बोल रहा है कि पापा तुमने खबर नहीं पड़ती, और पापा बोल रहे हैं कि बेटे पापड़ महीने पे ले, तेरे को मालूम नहीं पड़ता है। राइट, यहाँ फाइटिंग हो रही है। और आज बेटा बाप की फैक्ट्री में बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो इंडिया छोड़ के कहीं और फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार है। क्यों? वहाँ उसको फ्रीडम मिल रही है, वहाँ उसको उसकी थॉट के हिसाब से काम करने का मौका मिल रहा है, जो आज फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में वैक्यूम है। हम बच्चे को अपने पेरेंट ही उसको नर्सिंग ऐसा करते कि तेरा ना खबर पड़े रेवा दे उसको। सॉरी, कभी कभी गुजराती आ रहा है, बट दोज वर्ड गुजराती में ही आपको मैं बोल सकता हूँ। तो ये हमारा पेरेंटिंग कल्चर भी प्रॉपर नहीं है। बेटा ने नहीं खबर पड़ती, अथवा बेटे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं ऐसे करो। से ट्रेंड इज चेंज। आज जो बेटा पढ़ के आया हुआ है ना, वो आपको देखा भी है और स्कूल में पढ़ा भी है, और उसने जो स्कूल में पढ़ा है वो टोटली डिफरेंट है। मैंने मेरी बेटी है, छोटे भाई की बेटी, जो अभी 10th में है, 11th में, उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, मैंने उसका पुस्तक देखा परसों। हम जो पढ़े थे वो है ही नहीं अंदर, कितना चेंज हो गया। तो आज बच्चे हमारे हमसे होशियार है। जो मैं आज सीख रहा हूँ कंसल्टेंट के पास, वो आज कॉलेज में, स्कूल में 10वीं 12वीं में पढ़ा रहे हैं। जब हमको कॉलेज में आता था शायद, वो 10वीं 12वीं में पढ़ रहे बच्चे। तो ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। तो फ्रीलांस जब तक आप आपके बच्चों को या एम्प्लॉय को नहीं दोगे, तब तक आपकी फैक्ट्री ग्रो नहीं करेगी, और वो फैक्ट्री इसीलिए फैमिली ऑर्गेनाइजेशन डंप हो जाता है। बिजनेस में अगर सक्सेस होना है, कंसल्टेंट क्यों चाहिए? कंसल्टेंट का रीजन क्या है?
अगर बिजनेसमैन, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैं बहुत एक अच्छी कार चला लेता हूँ और स्पीड में कार चला लेता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं रेस में पार्टिसिपेट हो जाऊँ। अगर मुझे रेस में पार्टिसिपेट होना है तो मुझे कार कैसी चलानी, कहाँ ब्रेक मारना, कहाँ कितने एंगल से टर्न मारना, कहाँ गियर शिफ्ट करना, मुझे गाइडेंस चाहिए, एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। विदाउट स्किल मैं रेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, भले मैं कितनी भी अच्छी कार क्यों ना चलाता। हमारी कंसल्टेंट इसलिए चाहिए कि अगर आपको रेस में विन करना है तो यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस। अगर आप रेस में गाड़ी चला लिया तो जरूर एक्सीडेंट करोगे, कुछ दूरी तक तो जरूर जाओगे, बट एक्सीडेंट जरूर कर लोगे। या तो हो सकता है एक्सीडेंट ना करो तो स्लो जाओगे तो डेस्टिनेशन पहुंचोगे, लेकिन तब तक बहुत दूर आप रह जाओगे, बाकी लोग बहुत आगे चले जाएंगे। एक्सपर्ट का यहाँ जरूरत है। अगर आपको रेस में विन करना है, बिजनेस में अगर आपको विन करना है, एक रिमार्केबल ग्रोथ करना है, तो आपको एक्सपर्ट एडवाइस बहुत जरूरी है। और आज मैनेजमेंट कंसल्टेंट ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक कंसल्टेंट एसोसिएशन ऐसा है इंडिया के अंदर जो ग्लोबल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरह के कंसल्टेंट का एक कम्युनिटी खड़ा करके एंटरप्रेन्योर को, इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहा है। इफ यू थिंक यू आर वेरी गुड एट ड्राइविंग द कार, that does not means you can participate and win the race. If you want to participate and win the race, you need to enhance your skill with expertise. बहुत जरूरी है। कंसल्टेंट एज एन एक्सपर्ट, हमारी एक्सपर्टाइज क्या है? एन एक्सपर्ट कैन हेल्प बिल्ड ए रोड मैप एंड मेक यू अवेयर टू पोटेंशियल चैलेंजेस इन बिजनेस। हमें एक भ्रांति होती है कि ये होगा तो, बट अगर कंसल्टेंट आपने डेब्यूट किया है तो कंसल्टेंट आपको एक ब्लूप्रिंट बना के दे देगा कि यहाँ पे आपको चैलेंजेस आ सकती है, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम लोग ये प्लान भी बना सकते हैं। एज ए एक्सपर्ट कंसल्टेंट वी हैव टू कन्वे द मैसेज। एक्सपर्ट कैन गाइड यू हाउ टू विन द रेस, बट दे डू नॉट गिव ए गारंटी टू विन द रेस। हम लोग एंटरप्रेन्योर को गाइड कर सकते हैं रेस जीतने के लिए, बट हम गारंटी नहीं दे सकते कि आप रेस जीतोगे। क्यों? अल्टीमेटली कार किसको चलाना है? एंटरप्रेन्योर को चलाना है। स्टीयरिंग उसके हाथ में, गियर उसके हाथ में, ब्रेक उसके हाथ में, एक्सीलरेटर उसके हाथ में। तो हम तो उसको सिर्फ गाइड कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं दे सकते कि आप रेस जीतोगे। तो हमें ये उनको ठसाना पड़ेगा कि भाई हम जो कहेंगे हो सकता है कि हमारे परसेप्शन से थोड़े अलग हो, तो आपका एक्सपीरियंस भी हमारे साथ रखो और उस बेस पे हम लोग रोड मैप बनाएं, तब जाके हमको सक्सेस मिलने की संभावना ज़्यादा है। बट इट डज नॉट मीन कि आपने एक्सपर्ट ले लिया तो आपका फैक्ट्री चल जाएगा, आप सक्सेस हो जाएंगे या 100 करोड़ 200 करोड़ का धंधा कर लोगे। तो ये हमें उनको ठसाना भी पड़ेगा कि अल्टीमेटली जो काम आपको करना है, इम्प्लीमेंटेशन आपको लेना है, बिकॉज आफ्टर ऑल द एंटरप्रेन्योर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। एग्रीकल्चर से ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हम लोग गाइड कर सकते हैं, हम लोग एक वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हेल्प कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली उसको चलाना वो उनका जिम्मेदारी है। लेकिन आज मैं यहाँ थोड़ा एक आपको कोर्स करके कह सकता हूँ कि एज ए कंसल्टेंट हमें इम्प्लीमेंटेशन में भी हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग कंसल्टिंग दे के चले जाते हैं ना, फिर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, क्योंकि कंसल्टेंट वापस वही तालाब की पानी में चला जाता है जहाँ उसका डे टू डे प्रॉब्लम होता है। जब आप हफ्ते बाद उसको पूछोगे क्या हुआ, भाई कसो नहीं करी होता, आज काम आपको सही करो, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसा एक्सपीरियंस मिलता होगा भरत भाई आपको, राइट? एज ए कंसल्टेंट ये मुझे भी मिलता है कि हम लोग गाइड करते हैं तो कंसल्टेंट मतलब एंटरप्रेन्योर बोलता है कि सर आप चले गए, बाद में टाइम ही नहीं मिला, ये प्रोजेक्ट आ गया, वो प्रोजेक्ट आ गया, तो हम नहीं कर पाए। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, when the entrepreneur does not implement the system as per expert advice, the entrepreneur face hurdles during the business and blame to us. In this case, loss both the customer
एंड फ्यूचर। हम लोग यहाँ पे दो लॉस करते हैं, फ्यूचर रेफरेंस भी लॉस कर लेते हैं और एग्जिस्टिंग कस्टमर भी लॉस कर लेते हैं। तो हमें एक उनके पीछे भागना पड़ेगा, भाई इम्प्लीमेंटेशन करो। जो हर्षल भाई मेरी फैक्ट्री में कंसल्टेंट थे, 2 साल हर्षल भाई ने रेफरेंस मैंने हर्षल भाई का कर दिया था। हर्षल भाई 2 साल हमारे पीछे पड़े थे, इन्हें इम्प्लीमेंट तो करવું જ પડશે તમારે, नहीं तो તમે આ पोजीशन पर पहुंचो જ नहीं, તમે सक्सेस થશો જ नहीं। तो इस तरह से प्रेशर देके इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर करना पड़ेगा। विदाउट मॉनिटरिंग एज ए कंसल्टेंट वो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम ही उसको एंटरप्रेन्योर को छोड़ देंगे कि चले आप कारखाना में तो नहीं मिल जाते, तो फैक्ट्री में नहीं मिल जाते। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू विन द रेस द कंसल्टेंट हैज टू कंसंट्रेट on the vision with the blueprint and work on monitoring and implementing the culture in the systems. So now we are more responsible for our client success. As a consultant, we find some technique to convince the entrepreneur and pull them to our door. The thinking of an entrepreneur is very precise about the selection of the right consultant or right business guru. Our past performance and positive feedback will attract potential customer towards us. New learning for consultant. Today also most consultants are not having the fundamental of business success. They read books, collect the content and represent as per their ideas. जैसे पुराने कंटेंट में नया कवर बना दो या पुराना दारू नई बोतल में, वो जो हम एग्जाम्पल देते हैं, सिमिलर आज इतने सारे कंसल्टेंट मैं कहूँगा पैदा हो चुके हैं कि हमें किससे बात करना हमें नहीं मालूम है। और आजकल YouTube में अगर जाओगे तो बहुत सारे बिजनेस कंसल्टेंट मिल रहे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े गुरु दिखाते हैं। और छोटे छोटे जो मेरे यहाँ से सेल्समैन या सेल्स मैनेजर रह चुके हैं, वो भी बिजनेस कंसल्टिंग करके बिजनेस में आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है लोग पढ़ के कंसल्टेंट बन जाते हैं, ये हमारा काम नहीं है। These people are called the fake business guru and they are destroying our reputation in consulting market. हमारे लिए एक थॉट भी है, जो नए बिजनेस गुरु आ चुके हैं, आज हम लोग इतना अच्छा पढ़ चुके हैं। आज सर को मैं मिला जो IIM में प्रोफेसर थे और यहाँ काफ़ी एक्सपर्ट है, उनको मिला तो दे आर एक्सपीरियंस बेस्ड कंसल्टेंट। उन्होंने बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आज कुछ कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर को इन द सिस्टम। प्लीज तो ये हमारा एक्सपर्टाइज हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। बट जो नए आज 20, 22, 25 या 30 साल के जो लोग हैं एज ए बिजनेस गुरु हमारे सामने आए, उसको कैसे चैलेंज करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बहुत बड़ा एक बैड टाइम भी है। अगर हम लोग कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लोग आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि नया जो जनरेशन आ रहा है वो बहुत आउटस्मार्ट है। We have to understand the pain of the people in the business they feel in their business activity. Apart from consultations, as from my perspective, business analytics is also a key factor generating the most revenue today from their hypothesis testing. नए जो आज कंसल्टेंट ही कहेंगे, बट कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट और बिजनेस एनालिस्ट, ये दो में बहुत पतली भेद रेखा है, बहुत पतली। जो नया जनरेशन आ चुका है वो बिजनेस को एनालिसिस करके आपको एक रोड मैप दे रहे हैं, और ये लोग कल जाके ऑटोमेटिकली कंसल्टेंट बन जाएंगे। हमारे लिए यहाँ बहुत चैलेंज है, ये हमें आउटस्मार्ट कर देगा या हमें ओवरलेप कर देगा। तो apart from the consultation, as from my perspective, business analytics is as an intern for revenue generation. मैंने मेरी फैक्ट्री में 2 इंटर्न रखे हुए हैं
जो मेरा बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं और मुझे आने वाले 5 साल में कैसे काम करना चाहिए उसका चिट्ठा पूरा आज मेरे टेबल पर रखा है। एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड एंड आर गिविंग मी ए ब्लूप्रिंट टू रीच माय बिजनेस गोल। So there is a new emerging field which must be taken into account. आज कंसल्टेशन के साथ साथ हमें एनालिस्ट भी बनना पड़ेगा। कुछ कंसल्टेंट जो मैं आज काफ़ी लोगों को मिला, ऑलमोस्ट सभी हम लोग एनालिस्ट के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप लोगों सबके साथ इंटरेक्शन हुआ। बट जो कंसल्टेंट एनालिटिक्स नहीं ले रहा है आने वाले फ्यूचर फोरकास्ट का, वो कंसल्टेंट मार्केट से बाहर है। The reality is there probably is a great overlap between two roles. There is very thin the line between BC and BA. I see the business consultant as having much more business operation and can help the business make strategic operation decision. The business analyst would have much more business process modeling and requirement management type of skill. बहुत थीन डिफरेंट दिख रहा है हमें दोनों के अंदर। In upcoming market, business analyst outsmart the business consultant. We must find and develop the right leaders from them, their team, and distribute business activity by entrepreneur expertise on paper. हम लोग जो भी काम करेंगे वो हमारे कंसल्टेंट का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो भी काम करेंगे ना उसका डॉक्यूमेंट करना। और हमारे कस्टमर का काम ये है, हमारा मगजमारी है अथवा तो मुझे मालूम है या तो हम ऐसा ही करते हैं। तो मोस्ट थिंग इज डॉक्यूमेंटेशन। The business analyst would have much more business process modeling and requirement management type skill. सब कुछ डॉक्यूमेंट पे लाना। In upcoming month, we must find the right people who is interested for business analyst and documentation and growth chart। उसे हमें एंटरप्राइज में से लीडर बनाना है, उसी को एक टॉप लेवल पर बिठाना है और नीचे फैमिली के सब मेंबर। इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हो सकता है कि शुरू में ईगो सबके होंगे, क्लैश होगा, बट अगर आप उनको एक दिखाओगे कि एक साल इस तरह से चलो और एक साल चलने के बाद अगर उनको सक्सेस मिलेगा और वो वैल्यू बेस्ड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन होगा तो डेफिनेटली वो बेस पे काम करेगा। और अगर वैल्यू बेस्ड फैमिली ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा। आने नहीं फालतू तो आने दूर करो अथवा आ माराथी नहीं फालतू इतना दूर करो, राइट। तो हमारे पास ये बहुत से चैलेंज है। तो हमें ये जरूर देखना है कि जॉइंट फैमिली का कल्चर बना रहे फैक्ट्रियों के अंदर, फैमिली के अंदर, और बिजनेस ग्रो। और ये इस चैलेंज को हम लोग कैसे आगे कंटिन्यूस 100 ईयर्स के लिए लेके जा सकते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम एक इंडियन एंटरप्रेन्योर को फैमिली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को 50 साल या 100 साल या 4 जनरेशन 5 जनरेशन तक हम लोग कैसे ले जा सकते हैं, उसका रोड मैप अगर बना सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के अंदर। उस ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने से हमें भी नए इंसाइट्स मिलेंगे, बहुत सारे इनपुट्स मिलेंगे और हमें भी एक नया आयाम करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज हमें भी हर 2 साल 3 साल या 1 साल में प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ये फैक्ट्री मैंने छोड़ दी, अब मैं दूसरी कंपनी में कंसल्टिंग दे रहा हूँ, मैंने यहाँ छोड़ दी, अब ये कंपनी में दे रहा हूँ। तो हमें हर टाइम क्या एक चीज़ करना है क्या? हमें भी तो ग्रो होना है। तो ये हमें ग्रो होने के लिए हमें कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, लर्निंग करना पड़ेगा, फ्यूचर ट्रेंड को साथ में लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपनी वाणी का विराम देके आप सब लोगों का थैंक यू और शुक्रगुजार कहूँगा कि आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। IMCI इंस्टीट्यूट कंसल्टिंग एसोसिएशन का भी मैं बहुत आभारी हूँ और स्पेसिफिकली देवांशु भाई और भरत भाई जिन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, उसके लिए मैं आपका
बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।